إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجسوا كونوا عباد الله إخوانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کے رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو چلائے. جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو شخص ایسے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے. قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ پیش کی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی. پچھلے خطبے میں بتلایا گیا تھا کہ حسد کس کو کہتے ہیں، حسد اور رشک میں کیا فرق ہے، اور قرآن و احادیث میں حسد کی کس قدر مذمت بیان کی گئی ہے یہ واضح کیا گیا تھا. اور یہ بتلایا گیا تھا کہ حسد یہ بیماری یہودیوں کی اور نصرانیوں کی بیماری ہے، یہ ان کی صفت ہے. قرآن کریم میں اور احادیث رسول میں اہل کتاب کی یہ صفت بتلائی گئی ہے کہ حسد کرنے کا کام یہودی کرتے ہیں اور نصرانی کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کی صفت ہے، یہ ان کے ساتھ مختص ہے. اب جو لوگ ایسا کرتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہودیوں والا فعل کرتے ہیں اور نصرانیوں والا کام کرتے ہیں۔ تو حسد کے تعلق سے بتلایا گیا تھا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کا یہ کام ہے، قرآن و احادیث میں اس کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ان چیزوں پر گفتگو ہوئی تھی۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ حسد کے اسباب کیا ہیں، لوگ ایک دوسرے پر حسد کیوں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لوگ جلتے کیوں ہیں، اس کا سبب کیا ہے، اس کا کارن کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں اسے واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بتلایا گیا تھا کہ حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ کئی بیماریوں کی وجہ سے یہ حسد جیسی بیماری جنم لیتی ہے، اور حسد کی وجہ سے کئی پھر بیماریاں وجود میں آتی ہیں۔ یہ ایسی بیماری ہے، کئی بیماریوں کی وجہ سے یہ حسد جیسی بیماری جنم بھی لیتی ہے، اور حسد جب جنم لیتی ہے تو حسد پھر کیا ہے، کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ یہ اتنی مہلک بیماری ہے، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ حسد اصل میں کہتے ہیں کہ صاحب نعمت سے نعمت کے چھین جانے کی تمنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، کوئی دوسرا آدمی اس نعمت کو دیکھ کر جلتا ہے، حسد کرتا ہے، اور یہ تمنا کرتا ہے، دل میں آرزو کرتا ہے کہ اس کی وہ نعمت ختم ہو جائے، اس کو حسد بولتے ہیں۔ یا وہ نعمت ان سے چھین جائے اور مجھے مل جائے، اسے بھی حسد کہتے ہیں۔ یا مجھے ملے یا نہ ملے لیکن وہ نعمت اس کو نہیں ملنی چاہیے، اسے حسد کہتے ہیں۔ یا جن کو ملی ہوئی ہے ان سے وہ ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے نہ ملے۔ ان ساری چیزوں کا نام حسد ہے۔ ان کے اسباب کیا ہیں، یہ اسباب پر آج ہم انشاءاللہ تعالی غور کریں گے اور وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سبب حسد کرنے کا کہ اللہ رب العالمین نے جو روزی دی ہے انسانوں کو، بندوں کو، تو روزی کی تقسیم پر عدم قناعت اور ناراضگی کا اظہار کرنا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کو برابر روزی نہیں دی ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو متوسط دیا ہے، کسی کو بہت اونچے مقام پر فائز کیا ہے، اور کسی کو اللہ رب العالمین نے بہت نچلے طبقے میں رکھا ہے روزی کے معاملے میں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کنٹرول ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ یہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے کہ وہ گن نہیں پاتا ہے، کھا نہیں پاتا ہے، شمار نہیں کر پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنی دولتیں دی ہیں، کتنی روزیاں دی ہیں، بے شمار دیا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے، کم دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو اور بھی تنگ کر دیتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے روزی کے لیے، ایک لقمہ کے لیے بھی ترستا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی میں کشادگی عطا فرماتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کو چاہتا ہے روزی میں تنگی کر دیتا ہے، کم دیتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ رب العالمین ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، باریک سے باریک چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ کس بندے کو اللہ نے روزی کتنی دی ہے، زیادہ دیا ہے، کیوں دیا ہے، اللہ جانتا ہے۔
और किसी बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजी में तंगी अता कर दी है तो एक लुकमे के लिए भी तरसता है। क्यों ऐसा किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, जरूर उसमें कुछ न कुछ हिकमत है, जानता है। बसा औकात अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को मालदार बनाकर रोजी में कुशादगी अता करके उनको आजमाना चाहता है कि देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाहता है इस बंदे को मैंने इतनी रोजियां दी हैं, इतनी दौलतें दी हैं, इतनी नियामतें दी हैं, इतना ऐशो आराम का सामान दिया है, ये बंदा करता क्या है, अल्लाह को शुक्र अदा करता है या अल्लाह की नाफरमानी करता है, लोगों पर जुल्म करता है माली दौलत के जरिए से, या लोगों पर रहम करता है, या गरीब पर तरस खाता है, यतीम बेवाओं पर और क्या है नादारों पर, फकीरों पर, मिस्किनों पर क्या है तरस खाता है, उन्हें खिलाता पिलाता है, या खुद क्या है ऐश करता है और लौलाइब में और हराम चीजों में अपनी दौलत को लुटाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाहता है बंदे को रोजी में फरावानी करके। और जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी में तंगी कर देता है उसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाहता है कि इस तंगी की हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है या नहीं करता है, सब्र करता है या नहीं करता है, या शिकवा व गिला करता है, या शिकायतें क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पेश करता है, या तंगी की हालत में क्या है इन्होंने इबादतें को छोड़ दी है, इनके पास खाने का सामान नहीं है तो अल्लाह पर नाराजगी का उन्होंने क्या है इजहार किया और अल्लाह हमको दे नहीं रहा है, ऐसी शिकायतें करता है, फिर नमाजें छोड़ देता है, रोजा छोड़ देता है, इबादतों को छोड़ देता है और दीगर बुराइयों में क्या है लग जाता है, चोरी करता है, डकैती करता है वगैरह। तो तंगी में मुब्तला करके अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाना चाहता है और फरावानी अता करके भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाना चाहता है। इसलिए अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है कि अल्लाह रोजी ज्यादा किसी को क्यों दे रहा है, कम किसी को क्यों दे रहा है। दोनों हालतों में बंदों की आजमाइश। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को ज्यादा रोजी दे देता है, ज्यादा माल दे दिया, ज्यादा दौलत दे दिया, तो अब जिसको कम मिला हुआ है ये आदमी अब उस आदमी पर हसद करता है, जलन महसूस करता है कि इनके पास माल ज्यादा है, इनके पास दौलत ज्यादा है, इनके पास खाने पीने के सामान ज्यादा है, इनके पास क्या है ऐशो आराम के सामान ज्यादा है। ये अब जलता है अंदर अंदर, ये अब हसद करता है कि उनका वो माल खत्म हो जाए, उनकी रोजी में कमी आ जाए, उनकी सवारियों में कमी आ जाए, उनके ऐशो आराम में कमी आ जाए, उनके फरावानी में कमी आ जाए वगैरह। अब ये हसद करता है वो आदमी जिनको कम मिला होता है उस आदमी पर जिनको ज्यादा मिला हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया कि इनको जो कम दिया इन पर ये राजी नहीं है, अल्लाह पर नाराजगी का इजहार करता है, शिकवा करता है, गिला करता है, शिकायतें करता है और उस पर सब्र नहीं करता है, कनात नहीं करता है, दूसरों को देखकर जलता है। ये सबब है हसद करने का। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजी को अपने हाथ में रखा है, एक सबब ये। दूसरा सबब है हसद करने का और जलने का तकब्बुर और खुद पसंदी। आदमी जब खुद पसंदी में मुब्तला हो जाता है और तकब्बुर में जब मुब्तला हो जाता है, अपने आप ही को सब कुछ समझने लगता है, अपने आप को हर चीज में क्या है वो बड़ा समझने लगता है और हर चीज में वो चाहता है कि मेरा ही सब कुछ इसमें चले, मेरा ही कंट्रोल हो और मेरा ही क्या है सब कुछ इसमें चले। इस चीज में जब इंसान मुब्तला हो जाता है तो अब ये चाहता है कि दुनिया की सारी नियामतों का मुस्तहिक वही बने, कोई और ना बने। अब ये चाहता है, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि जितनी भी नियामतें दुनिया में हैं उन सब का मुस्तहिक वही बने, उसे ही मिले, किसी और को ना मिले। इसकी वजह से किसी और को जब वो नियामतें मिलने लगती हैं तो ये खुद पसंद और मुतकब्बिर आदमी जलता है, हसद करने लगता है कि ये नियामत उसको नहीं मिलनी चाहिए थी, क्यों मिली, खत्म हो जाना चाहिए था। एक सबब खुद पसंदी है और तकब्बुर है, बड़कपन है, अपने आप को बड़ा समझना। और ये बहुत बड़ी बीमारी है। अक्सर लोग आज इस बीमारी में मुब्तला हैं, अक्सर लोग इस बीमारी में आज मुब्तला हैं और मुसलमानों में खास तौर पर क्या है ये बीमारी आज आम तौर पर पाई जाती है कि आदमी खुद पसंदी में मुब्तला है, तकब्बुर में मुब्तला है, गुरूर में मुब्तला है और हर चीज और सारी नियामतें उन्हीं मिल जाए और हर चीज का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में हो जाए, वो इंसान चाहता है। एक सबब ये है हसद करने का। तो फिर जब किसी और को क्या है मिलता है तो ये आदमी हसद करता है, ये आदमी जलता है और ये तमन्ना और आरज़ू ये करता है कि उनसे वो नियामतें छिन जाए और उनसे क्या है वो नियामतें खत्म हो जाए। तो एक सबब क्या है तकब्बुर है और खुद पसंदी, ये दूसरा सबब।
तीसरा सबब है हसद करने का और जलन का, कि हासिद जो होता है वो बुग़्ज़ रखता है, कीन्हा रखता है। जो हसद करने वाला होता है वो महसूद से, जिनसे वो हसद कर रहा है, जिन पर वो हसद कर रहा है, जिनसे वो जल रहा है, उसके ताल्लुक से पहले ही दिल में उन्होंने कीन्हा बैठा के रखा हुआ है। और जब ये कीन्हा दिल में आ गया, बुग़्ज़ जब दिल में आ गया, तो अब इसकी वजह से वो ये हर वक्त ये चाहता है, उनको अगर खुशहाली में देखता है तो ये चाहता है उनकी खुशहाली बर्बाद हो जाए, क्योंकि कीन्हा जो है उनके दिल में उनके खिलाफ, बुग़्ज़ जो है उनके दिल में उनके खिलाफ। तो खुशहाली में जब उनको देखता है, जिनके खिलाफ उन्होंने कीन्हा और बुग़्ज़ बैठा रखा है दिल में, उनको जब खुशहाल देखता है, हंसता खेलता जब देखता है, तो अब ये हसद करने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला ये चाहता है कि उनकी खुशहाली बदहाली में तब्दील हो जाए। उनको जब सेहतमंद और तंदुरुस्त देखता है, तो ये हसद करने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला अब ये चाहता है कि उनकी सेहत खत्म हो जाए, उनकी तंदुरुस्ती खत्म हो जाए, वो बीमारियों में मुब्तला हो जाए और उनकी सेहत खराब हो जाए। इसी तरह से और कोई नियामत जब उनको मिलती है, तो ये बुग़्ज़ रखने वाला, कीन्हा रखने वाला दिल में क्या है, ये सोचता है, ये तमन्ना करता है कि उनकी वो नियामत उनसे छीन जाए, उनकी वो नियामत उनसे खत्म हो जाए। इस तरह से क्या है, ये नफरतें पैदा करने लगता है, दुश्मनी उनके ताल्लुक से क्या है मोल लेने लगता है, और डिप्रेशन में क्या है मुब्तला हो जाता है, खुद अपने आप में परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि उनको खुशहाली क्यों मिली, उनको सेहत क्यों मिली, उनको तंदुरुस्ती क्यों मिली, उनको ये ओहदे क्यों मिले, उनको ये क्या है खुशहाली क्यों मिली, और उनको ये नियामतें क्यों मिली। ये अपने आप में परेशान है, और इतना परेशान है, न दिन को सोता है न रात को सोता है, रात को भी इन्हें चैन नहीं आता है, नींद खुलती है तो यही फिक्र सताती है कि फला कोई नियामत क्यों मिली है, दिन होता है यही फिक्र उनको सताती है कि फला कोई नियामत क्यों मिली है, फला कोई तंदुरुस्ती क्यों मिली हुई है, फला कोई सेहत क्यों मिली हुई है, फला को ये दौलत क्यों मिली हुई है, फला को ये खुशहाली क्यों मिली हुई है, फला को ये ओहदे क्यों मिले हुए हैं, फला को कुर्सियां क्यों मिली हुई है, और फला फलाह पर क्यों फायज है। दिन भर परेशान है, दूसरों को भी परेशान करता है, रात भर परेशान है, और नींद में क्या है उन्हें नहीं आती है, चैन नहीं आता है, सुकून नहीं आता है। जबकि मोमिनों की सिफत बतलाई गई है कि सारी दुनिया जब सो रही होती है, मोमिन बंदा उस तन्हाई की रात में अकेले उठता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है, तहज्जुद में गुजारता है। उसकी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। लेकिन एक हासिद का नतीजा होता है, न रात उनका सुकून से गुजरती है, न दिन इनका सुकून से गुजरता है। तो हासिद का महसूद से बुग़्ज़ रखना ये सबब है हसद करने का और जलन का, ये तीसरा सबब। चौथा सबब, एक आदमी दूसरे पर क्यों हसद करता है, क्यों जलन करता है। जो हासिद होता है, किसी को माशरे में जब नियामतों में देखता है, आगे बढ़ता हुआ देखता है किसी भी मामले में, तो अब ये कोशिश करता है, चाहे कोई भी मामला हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी मैदान हो, इल्म का मैदान हो, आलिम उलमा का मैदान हो, मास्टरों का मैदान हो, ताजिरों का मैदान हो, बिजनेसों का मैदान हो, या कारोबार करने वाला का मैदान हो, या आम मजदूर जो एक दूसरे के क्या है यहाँ खटते कमाते खाते हैं, चाहे इनका मैदान हो, कोई भी फील्ड हो, सब में क्या फिट कर लीजिए। एक मिसाल के जरिए से मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ से जब किसी को माशरे में किसी भी मामले में तरक्की करता हुआ देखता है, उभरता हुआ जब देखता है, तो ये खुद कोशिश करता है कि मैं भी उस जैसा बनूं, तरक्की करूं, कोशिशें करता है। लेकिन कोशिश के बावजूद जब ये नाकाम हो जाता है और उसके मुकाबिल क्या है ये नहीं पहुंच पाता है, तो ये चाहता है कि हम खुद ना पहुंचे, वो भी ना पहुंचने पाए, वो भी क्या है उस मर्तबे में फायज ना हो। कोशिश के बावजूद जब ये नहीं पहुंच पाया, तो अब ये उनसे हसद करने लगता है, जलने लगता है कि वो भी गिर जाए, उनकी भी तिजारत खत्म हो जाए, उनका भी बिजनेस खत्म हो जाए, उनकी भी सेहत और तंदुरुस्ती खत्म हो जाए, उनकी भी खुशहाली खत्म हो जाए, उनकी भी नियामतें खत्म हो जाए, उनका भी इल्म खत्म हो जाए, उनकी भी शोहरत खत्म हो जाए, उनका मकाम मर्तबा खत्म हो जाए, उनके ओहदे खत्म हो जाए, उनकी कुर्सियां खत्म हो जाए, वगैरह हर एक में फिट कर लीजिए। जब ये नहीं पहुंच पाया कोशिशों का बावजूद, अब इनके अंदर हसद पैदा हुई कि वो भी गिर जाए, डाउन हो जाए, उनकी वो नियामत उनसे छीन जाए, खत्म हो जाए। ये सबब है हसद करने का।
जलन महसूस करने का। इल्म के मैदान में भी ये है, कारोबारी मैदान में भी ये है, और तिजारत के मैदान में भी है, दूसरे मैदान में भी है। हर चीज में आप इनको फिट कर लीजिए। एक मिसाल के जरिए से मैंने इनको समझाने की कोशिश की है। ये सबब है हसद करने का और दूसरों के तय जलने का एक चौथा सबब। पांचवा सबब, एक आदमी दूसरे आदमी से हसद क्यों करता है, क्यों जलता है। पांचवा सबब यह है जाहो मनसब का लालच, ओहदे का लालच, कुर्सी का लालच, मर्तबे और मकाम का लालच। इसकी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से जलता है। आदमी चाहता है यहां से कि अपने खानदान में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने बस्ती में, अपने शहर में, अपने मुल्क में सबसे ऊंचा रहे, हर चीज में क्या है ये नामुर रहे, ये चाहता है यहां से। लेकिन जब ये देखता है कि इनके मुकाबले में, इन्हीं के खानदान में, इन्हीं के मोहल्ले में, इन्हीं के गांव में, इन्हीं की बस्ती में, इन्हीं के शहर में, इन्हीं के मुल्क में जब कोई दूसरा उसके मद्दे मुकाबिल आता है और लोग इसे छोड़कर उनके तरजीह देने लगते हैं कि लायक ये है, फायक ये है, मकाम मर्तबे के लायक ये है, ओहदे के लायक ये है, कुर्सी के लायक ये है वगैरह, नियमतों के लायक ये है वगैरह, ये क्या है, लोग उनकी तरफ मैलान होने लगते हैं और रुझान उनकी तरफ होने लगता है। तो जो आदमी चाह रहा था कि मुझे ये सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन उनके मुकाबले में वहां पर कोई और है जो लोगों का रुझान उनकी तरफ है, अब ये मायूस होता है। अब मायूस होने के बाद अब ये आदमी खुद हसद की बीमारी में मुब्तला होता है, जलन की बीमारी में मुब्तला होता है और उनसे ये हसद करने लगता है कि ये चीज इनको ना मिलनी चाहिए, ये नियामतें इनको नहीं मिलनी चाहिए, ये ओहदे इनको नहीं मिलने चाहिए, और ये कुर्सियां इनको नहीं मिलनी चाहिए, ये जाहो मनसब इनको नहीं मिलना चाहिए, ये मकाम और मर्तबा, ये शोहरत इनको नहीं मिलनी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। इस कोशिश में लगता है और हसद में मुब्तला हो जाता है, जलन में मुब्तला हो जाता है। ये सबब है, ये बहुत बड़ी बीमारी है हसद करने की और जलन करने की। चुनांचे एक सही वाक़ये से आप इसको ज्यादा समझ सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की मदीना मुनव्वरा की तरफ, मक्का के दुश्मन और काफिरों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जीना दो भर कर दिया और कत्ल करने का प्लान बनाया, साजिशें की, सब तय हुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म आया कि आपको यहां से हिजरत करनी है मदीना मुनव्वरा की तरफ। साहबा पहले हिजरत करके जा चुके, उनका हुक्म आ चुका था, साहबा को पहले भेज दिए। मदीना में इस्लाम फैलने लगा। इस्लाम के लिए क्या है, मदीना मुनव्वरा अमन और सुकून के गहवारा बन चुका था। अब नबी को हुक्म होता है कि आपको भी हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचनी है। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम आने से पहले वहां पर सारे लोग तो काफिर थे। उस वक्त एक आदमी था मदीना मुनव्वरा में जिनका नाम अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल था। नाम याद कर लीजिए, अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल, ये मुनाफिकीन का सरदार है। मदीना में क्या है, सारे लोग मिलकर, ये चालाक था, चतुर था, वाकईतन ओहदे का लायक था, वाकईतन सरदारी का लायक था, वाकईतन कुर्सी का लायक था, वाकईतन मर्तबे और मकाम का लायक था। मदीने के सारे कबीलों ने मिलकर, सारे लोगों ने ये तय किया कि अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल को मदीने का सरदार बनाया जाए, मदीने का बादशाह बनाया जाए और मदीने का लीडर बनाया जाए। सारे लोगों ने तय करके ताजपोशी के लिए तैयारी कर ली। अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल की ताजपोशी हो जाती, मदीने का सरदार बन जाता, मदीने का रईस बन जाता और मदीने का क्या है, लीडर बन जाता। इतने ही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं। हिजरत करके
मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मदीना मुनव्वरा पहुंचे, नबी का वजूद वहां पहुंचा, मुबारक वजूद। अब मदीना के सारे लोग जो बहुत सारे मुसलमान हो चुके थे, गिने चुने चंद थे जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, इनमें से अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल है, इनकी जमात के लोग भी हैं। अब सारे लोग चूंकि मुसलमान हैं, इन लोगों को छोड़कर नबी का इस्तकबाल हुआ, खुशी की लहर दौड़ गई। अब सरदार किसी और को क्यों मनाया जाता? इमाम कायनात पहुंच चुके थे, सारे इंसानों के सरदार, कयामत तक आने वाले तमाम लोगों और अंबिया के इमामुल अंबिया क्या है और तमाम बनी आदम के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं, कयामत तक आने वाले सारे लोगों के जब ये सरदार हैं, इनके रहते हुए किसकी मजाल है कि वो सरदारी क्या है कबूल कर ले? और किनको ये जुर्रत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहते हुए किसी और को सरदार बना दिया? किनको जुर्रत थी? किन्हें ये मजाल था? गोया कि अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल को सरदार नहीं बनाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी तो नबी है, किसी और सरदार की वहां पर जरूरत नहीं है। सारे लोगों की तवज्जो नबी की तरफ हो गई। अब अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल जिनकी ताजपोशी के लिए तैयारी हो चुकी थी, उनका ख्वाब था, वो ख्वाब लम्हे भर में चकनाचूर हो गया, मलिया मिट हो गया, खत्म हो गया। सरदार नहीं बनाया गया, अब लायक नहीं था, अब ज़ेबा नहीं था, अब ये दुरुस्त नहीं था। अब अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल अब जलन महसूस करता है, हसद में मुब्तला हो जाता है कि नबी के आने की वजह से मेरी सरदारी खत्म हो गई, मेरा लीडरशिप खत्म हो गया है। अब नबी से जलने लगा। नबी से क्या है, वो बाकायदा तौर पर हसद करने लगा, नबी पर ईमान लाने वाले सहाबा से हसद करने लगा और इसी हसद में मुब्तला रहा, इसी बीमारी में मुब्तला रहा, ईमान नहीं लाया। जाहिरी तौर पर जंग बदर में ये आदमी ईमान तो लाया और इनकी जमात के लोग ईमान तो लाए, लेकिन अंदर से ये आदमी मुनाफिक रहा, काफिर रहा, मुसलमानों का दुश्मन रहा और इस्लाम का दुश्मन रहा। सबब में बतला रहा था, सबब में बतला रहा था कि एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर हसद क्यों करता है? जाहो मनसब का लालच। अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल के अंदर ये लालच आया कि कुर्सी मुझे मिलनी थी, ओहदा मुझे मिलना था, सरदारी मुझे मिलनी थी, इनकी वजह से नहीं मिली है, इसलिए इनसे जला जाए, इनसे हसद किया जाए, इनको खत्म करने की प्लानिंग की जाए, इनको डेमिश करने की प्लानिंग की जाए। और उन्होंने वही किया कि नबी को खत्म करने, सहाबा को खत्म करने के ताल्लुक से उन्होंने प्लानिंगें की, साजिशें की, काफिरों से मिले, यहूदियों से मिले, लंबी प्लानिंग करते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, कामयाबी नहीं मिली। और उसी हालत में, उसी हसद में, उसी जलन में क्या है, इस आदमी की वफात भी हुई और इंतकाल भी हुआ। तो ये मैं सबब बतला रहा था कि जाहो मनसब की लालच में एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर हसद करता है और जलन महसूस करता है। तो एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर जो हसद और जलन करता है, इसकी वजह क्या है? कई एक असबाब है। ये चंद असबाब को मैंने क्या है आपके सामने जिक्र किया है। इन सारी चीजों को क्या है मद्देनजर रखते हुए अपने आप को टटोलना है कि कहीं हमारे अंदर ये असबाब तो नहीं है, हमारे अंदर ये चीजें तो नहीं आ गई है कि हम किसी और के ताल्लुक से हसद में क्या है मुब्तला हो गए हैं और इसकी वजह से कितनी बड़ी क्या है तबाही आने वाली है हमारी दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्या है कितनी बड़ी तबाही आएगी और किस कदर अजाब के हम क्या है मुस्तहिक बन जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अगले खुतबे में क्या है इसको वाज़ेह करने की कोशिश की जाएगी। इन असबाब के अंदर अगर ये सब असबाब मौजूद हैं या कोई एक है, फौरन तौबा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में रुजू करने की जरूरत है और दिल को और ज़हन दिमाग को हसद जैसी बीमारी से क्या है पाक साफ करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में हसद जैसी बीमारी से बचने की तौफीक इनायत फरमा, कुरान और अहादीस पर चलने और उनको समझने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह
ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی کیا ہے مغفرت عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔